So my name is Sahil Khattar. I'm going to host this property all throughout this season. Who am I? I'm an egghead with inverted hair growth. As you can see. अगर आप मेरी शक्ल को ऐसे कर दोगे, I will look like a normal guy. मतलब बाल ऊपर होंगे और नीचे clean shaven होगा. है कि नहीं? So now from there, we move up to the continuation of the AV. इन्हीं लोगों ने, इसी लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा हमरा, हाँ जी हाँ दुपट्टा हमरा, हो जी हो दुपट्टा हमरा, जी हाँ इसी लोगों ने ले ली ना दुपट्टा हमरा. For those who have not watched comedy, it's fairly simple. You have to clap, you have to laugh, you have to cheer, even if I'm not funny. But if you feel me funny, please feel free to remove pieces of clothing and throw it on me on stage. Well, not the guys, not the guys. Well, actually, not even the women too. This offer has been taken back because few months back I was performing in Chennai and Jayalalitha was there in the audience and I made this same offer and within 15 minutes she removed her innerwear and threw it on me on stage. Some of you are laughing, it's disgusting. I now use it to cover my Toyota Innova at home. Come on, get some more energy. What's wrong with you guys? What are the single people in the house? Give me a cheer. Single people, give me a cheer. All the married people, give me a cheer. Married guys? Anu sir, you're not married? Still all this? Sir, आप बहुत खुश लग रहे हो sir. आप शादीशुदा लग रहे हो sir, नहीं? Anyway, so let me introduce myself. My name is Atul Khatri. Shobha Shadi, fantastic, fantastic. My name is Atul Khatri and I am 47 years old. You know, usually I get a clap over here. Come on, tali bajaiye, please. Because at the age of 47, I'm India's oldest English stand-up comic. In fact, I'm so old, or rather some of these guys in our trade are so young, all in the mid-20s, early 20s, that whenever I perform with them backstage, they get confused. Should we call him dude or should we call him dad? And doing stand-up comedy at this age is very tough. It's very tough. No, it's not the talking part. You know, as we guys get older, we can speak for hours. It's the bloody standing part which is the problem. And the bladder control. But don't worry, it's all under control today. I won't diapers. Adult diapers. You know, there's a brand of adult diapers in India called Friends. क्यों सलीम, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, मुझे पता है. और आज वो खुल के नजर आ गया. लेकिन जहाँ तक सवाल है, India's digital superstar, I think it's here to stay. I was just speaking to my friend here, Anubhav ji, and he said a very nice thing. क्या लगता है? Anupama ji is also very close to us. Satish is very close to us. He said, Internet is here to stay. And ये हर नई चीज़ जो होती है, वो पहले आप उस पर शक करते हैं, और उसके बाद वो तूफान बन जाती है. I think this is going to be a very, very big thing. And I'm proud that I was called here to be and say, मेरा दोस्त, मेरा दोस्त, अरे मेरा दोस्त सलीम भी यहाँ है. And guys, let me speak. India's digital superstar is here to stay. वो बोलता है ना, आपने भी बोला कि घर में बैठे बैठे गाओ, बजाओ, स्टार बनो, इधर आओ, माल कमा जाओ. शाबाश, शाबाश, शाबाश. ऑल द बेस्ट. कैसा लगा टैलेंट? जोर का, बहुत जोर का. या यांग है कि नहीं? दीन और दुनिया थोड़ा वही. So, लेकिन अनु जी का वो हिडन टैलेंट जो है वो नहीं एक्सपोज हुआ है. आप बताएंगे तो एक्सपोज होगा. बट एनीवे, ओवर टू यू. My hidden talent would be हाँ यार फैमिली ऑडियंस के लिए नहीं बोल सकते. हाँ, खाना बना लेता हूँ मैं थोड़ा बहुत. ये हाँ, I mean खाओगे तो I can't guarantee your safety, but बना तो लेता हूँ. Look at me, dude. Do I look like I discriminate? It's great to be at the beginning of something that is revolutionary and that will define how talent is located in the next few years. My very Vishal ji, thank you so much.
Swaroop Khan singing Tharki Chokro from PK. वाह, थैंक यू। आपने PK सोबर देखी थी या PK देखी थी? मैंने ऐसे ही देखी थी भाई। Okay, no, please. Why are you guys going behind? Please come on. So, with Swaroop Khan, who is an Indian Idol 5, we have Shivam and Shashi, who've given music in Maricom, as well as we have Bhumi Trivedi ji, who sang her latest song in Ram Leela. Huge round of applause for them. They've come here to support India's digital superstar. So, Swaroop ji, आपसे शुरू करते हैं. आपको क्या लगता है when it comes to singing and musical sensibilities and abilities, India's digital superstar कैसा purpose serve करेगा? देखिए, बहुत ही अच्छा कर सकता है क्योंकि आजकल इंटरनेट बहुत चल रहा है और लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं जी। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत का जितना भी जो भी छुपा हुआ टैलेंट है जो किसी वजह से पहुंच नहीं पा रहा आगे जी, तो मुझे लगा वीडियो बहुत आसान चीज़ें डाला और आ सकता है बहुत जल्दी आगे। बिल्कुल। तो आपने कोई ऐसा सतरंगी अतरंगी टैलेंट देखा है राजस्थान में कहीं पे? राजस्थान में तो सब सतरंगी अतरंगी ही टैलेंट है और वो तो वेशभूषा से पता चलता जैसे है। एक म्यूजिकली ठरकी छोकरो देन बहुत सारे जैसे वहाँ की महिलाएं 5-7 घड़े उठा के डांस करती है। क्या बात है। काफी टिपिकल, मतलब बहुत ही घड़े पे घड़ा, अलग है। घड़े पे घड़ा, घड़े पे घड़ा, घड़े पे घड़ा। बैलेंस देखिए आप, Talent। बैलेंस देखिए, टैलेंट देखिए। कमिंग टू सरजी, Hello everyone. so what do you think is the future when it comes to music and India's digital superstar? Well, I think शशि is laughing, मतलब ये कुछ बोल सकते हैं laughing, ये पहले कुछ बोले फिर मैं बोलता हूँ। अरे नवाब साहब, पहले आप में गाड़ी निकल जाएगी। अच्छा देखिए, मुझे सर सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरा नमस्ते। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं, स्पेशली जो गाने वाले होते हैं, क्योंकि मुझे गाने वालों के बारे में ज़्यादा पता है क्योंकि मैंने खुद भी ऑडिशंस दिए और मुझे ऐसा लगता है कि हम जो घर में गाते हैं तो उस समय हम जो गा पाते हैं या हमें लगता है कि ये मेरा 100% है, वो हम जब जितने भी जजेस हैं हमारे उनके सब सामने जब जाके गाते हैं तो वो हाफ से भी हाफ हो जाता है। तो इतना तो मैं श्योर हूँ कि ये होता है, सबके साथ होता है, हम सबके साथ हुआ है ऐसा। और ये चीज़ जो है ये इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा क्योंकि आप अपने घर पे रीटेक कर सकते हैं जब तक कि आपको ये नहीं फील हो कि हाँ दिस इज़ माय 100% और उसके बाद मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा। तो ये एक चीज़ बहुत प्लस पॉइंट होगी सबके साथ कि नहीं याद करके नहीं आया हूँ। तो ये एक चीज़ प्लस पॉइंट होगी सबके साथ। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत सबके लिए एक बेनिफिट होगा जी। आई थिंक सबसे बड़ी बात है ये। क्या बात है। अच्छा शिवम जी, so there are so many covers that happen on YouTube and वो covers कितने वायरल भी होते हैं। So keeping that in mind, what is the scope when it comes to digitalization? मैं यही बोलूँगा कि अनु जी, सलीम जी, विशाल जी, इन लोगों के सामने हम लोगों ने ऑडिशंस दिए हैं लाइन में लग के और पूरी रात 12-12, 13-13 घंटे खड़े होकर लाइन में ऑडिशंस दिए थे, आप लोगों को याद होगा। तो वही मैं भाई की बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो मौका डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल रहा है इन सब लोगों को, जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं, ये जो हम लोगों ने किया है यहाँ पर आज, जो भी टॉप 5 या टॉप 4, टॉप 3 तक पहुँचे हम लोग, तो वो लोग इजीली पहुँच सकते हैं। मतलब इतनी मेहनत नहीं करनी है, कोई राउंड्स नहीं है, कोई ऑडिशंस नहीं है सर, बड़े जो जजेस होते हैं उनका नर्वसनेस नहीं है, सीधे अपना टैलेंट दिखाओ और प्रमोट करो अपने आप को, जो जिसको व्यूज ज़्यादा मिलेंगे वो जीत जाएगा। सिंपल है। क्या बात है। भूमि जी, next question to you. Okay, please come in the front. Everybody doesn't bite, except me. So, okay, when it comes to digital auditions and hosting them on a portal, आपको लगता है कि जब आपने पार्टिसिपेट किया था, जैसे बताया था कि 13-14 घंटे लाइन में खड़े रहना, उस टाइम पर अगर डिजिटलाइजेशन होती तो कितना बेटर होता परफॉर्मेंस? First of all, good evening everybody to here too, and first of all, I would want to thank India's digital superstar for making all of us a part of its family. And second thing is, I think मेरे लिए बहुत ही easy होता। इंडियन आइडल में जब ऑडिशंस हमने दिए थे, अपीयर किया था हम लोगों ने अहमदाबाद में, और तब मैं बड़ौदा रहती थी और बड़ौदा से अहमदाबाद इट वाज जस्ट सिर्फ 2 घंटे का ही रास्ता था। इट वाज ट्रैवल करना बहुत इजी था, लेकिन उसके साथ साथ जितने प्रेपरेशंस होते हैं शायद वो डेफिनेटली कट हो जाएंगे।
पर जो 10-12 घंटे एक क्यू में खड़े रहने की जो एज एन उसका जो मज़ा है वो डेफिनेटली इसमें कट आउट हो जाएगा। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि आप घर बैठे अपने हिसाब से अपने कंफर्ट लेवल पे अपने कंफर्ट जोन में जाकर आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, अपना टैलेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड देन यू कैन सेंड इट टू द वर्ल्ड। ओह दैट्स ग्रेट। सो वो बेटर है या ये बेटर है? दोनों बेटर है, दोनों बेटर है। दोनों का एक्सपीरियंस अलग है और उसका भी उसमें जो मेहनत का मज़ा है वो बहुत अलग है और इसमें भी डेफिनेटली मेहनत तो है ही और इंतज़ार भी ज़्यादातर है इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा कि कितने लाइक्स कितने हिट्स आ रहे हैं एंड देन यू विल बी डिक्लेयर्ड एज द इंडियाज सुपरस्टार, इंडियाज डिजिटल सुपरस्टार। सो आई थिंक दोनों अपनी अपनी जगह पर बेस्ट है। Agreed. Thank you so much for coming in. स्वरूप जी, शिवम, भूमि, शशि। मैं कुछ और कहना चाहूँगा। बिल्कुल, ये मेरा एक अलग टैलेंट है कि मैं माहौल को कॉपी कर लेता हूँ जल्दी, और जैसे इन्होंने चीज़ें बोली और थोड़ा मुझे भी है कि मुझे और कुछ बोलना चाहिए। स्पेशली मैं इंडियन आइडल 5 का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूँगा, जिन्होंने मुझे अपने गाँव भैया से यहाँ लाए हैं और आज जो भी काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से है। साथ ही हमारे जजेस ने बहुत ही हमें प्यार से रखा था, सलीम जी, अन्नू जी, सुनीति मैम, इनका हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। थैंक यू। It's okay. It's just whatever naturally comes. That'll be great. Look, anything that finds new talent, anything that encourages new talent, I think all of us will stand by something like that because all of us started somewhere. All of us remember that well. And discovering new talent is something that we've all been part of, and there's nothing as exciting and as sort of validating as that. You feel like you're doing something real. You know, when Salim was just telling me with a great sense of pride, Anuji as well, that all these kids were on Idol and all of them have made it, and they feel like they belong to them, and that's a wonderful thing, and it's something that you can give and something that you can receive from them as well. You get a great deal of pride when someone you've discovered does well. You know, so I think this is a wonderful platform towards that effect, and portal. It's a portal. My apologies. Yeah, anything that goes towards finding good talent, I'm always there with them. Thanks. So, do you think when everybody is trying to get into the whole bigger game of things, do you think a portal like this would have been helpful for at that time for you maybe, or me, or whosoever was there at that time? Man, I don't believe, especially in the digital age, that we should be looking towards what has happened in the past and juxtaposing them. Uska kya lena dena yaar? Matlab, let's figure out how it's going to go in the future. I think for whatever it's worth, if it's done right, and I'm sure Fremantle will do it right, because this is, I mean, the one thing I can tell you is that the intention has always been good. Whether it's any of the Idol series, they've always picked and supported the best talent. And I think that will happen on India's Digital Superstar as well. And the one thing I've learned in my 15 years in the music business is that you cannot keep good talent down. So I think this will just take it further. Cheers to that. Salim ji. You know, I think what's happening these days is each time you look for a good singer, even if you've written a song, you composed a song, और तुम्हें एक अच्छे सिंगर की ज़रूरत है, तो चाहे वो इंडियन आइडल में आया है या कोई भी रियलिटी शो में आया है या कोई गाना ऑलरेडी एक प्लेबैक सिंगर है, तो हम पहले उसको सर्च करते हैं, लेट्स हियर हिज वॉइस। With India's digital superstar, I think that job is going to be extremely simple if you want to find some new talent. Nice. And you know, चलो सब हमने काफ़ी सब सिंगरों को मौका मिल गया है, सब लोग अच्छा गा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि इनको मौका बार बार नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हमेशा एक कंपोजर के जहन में ऐसा होता है कि लेट्स लुक फॉर समथिंग न्यू, लेट्स एक अलग आवाज़ एक गाने को एक अलग अंदाज दे सकती है। सो इट्स ऑलवेज नाइस टू, और ऐसा कई बार होता है जब रियलिटी शोज होते हैं तब लोगों को लाइन नहीं लगाना है, लोगों को टेलीविजन पर नहीं आना है। मम्मी कहती है नहीं बेटा तू टेलीविजन पे नहीं जा सकता या तू नहीं जा सकती। सो दोज पीपल हु डोंट वांट टू गो टू रियलिटी शो एंड टेक दैट, जजेस उनको जज कर रहे, आपका सूट थोड़ा इधर हो गया वैसा हो गया, ऑल दैट स्टफ, पीपल जस्ट वांट टू शो देयर टैलेंट टू ऑन अ पोर्टल व्हिच इज स्ट्रेट अप from you to the whole world, without any judges, without any camera, without any crew, without anything. And that is it. India's digital superstar. It's your medium from your own heart to the whole world.
It's right there. Thank you so much. अच्छा, कोई सलीम जी, आपने कोई सतरंगी अतरंगी ऐसा टैलेंट देखा है अपार्ट फ्रॉम द म्यूजिकल टैलेंट दैट यू हैव डिस्कवर्ड? कोई भी चीज ऐसी याद आ रही हो? यार बहुत देखते हैं यार, YouTube पे कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ अमेजिंग स्टफ चलते ही रहता है. इंडिया का कुछ टैलेंट नहीं, बट मैंने एक हाल ही में ग्रुप देखा है विच इज एन एक्पेला ग्रुप. इट्स US बेस्ड, मैं नाम भूल रहा हूँ. उनकी अमेजिंग फॉलोइंग है, बहुत सारे लाइक्स है. आई मीन not Pen Masala. Pen Masala is very famous. It's Indian, but this group is bigger than Pen Masala. It's English. It sings English. Forgetting P पे से उसका नाम है. That's it. Pentatonics. Huge group, and you know they made it through YouTube. Yeah. Nice. They're doing concerts. You know they have a record deal. They have everything. And शुरुआत भी उनकी YouTube से. और ऐसे कई सारे आर्टिस्ट हैं जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म से शुरुआत हुई और आजकल बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं. जस्टिन बीबर, तो ऐसे कितने. मैं ये समझता हूँ कि हमारी एक 1 बिलियन की पॉपुलेशन है. एवरी 7th guy on the planet is Indian. Just imagine what is in store in our country. I get it. And this is it. India's digital superstar can is the next big thing. Anuji, I think frankly, before we even talk about India's digital superstar, I think Anupama, Satish, Fremantle, मेरा रिश्ता तो बहुत साल का, 10 साल हो गए अभी. I mean 6 Indian Idols entertainment के लिए कुछ भी कर रहे तो नहीं, but Indian Idols का आप जर्नी देखते हैं, the amount of encouragement Anupama gave me at that time. So यार इसको डिस्कवर करना है, कुछ मेहनत करनी है. सतीश भी लगे रहते थे. आई थिंक दैट इज नाउ ट्रांसलेटिंग इनटू समथिंग एज विशाल जस्ट पॉइंटेड आउट कि आप पास्ट के बारे में मत बात करो. टॉक अबाउट द फ्यूचर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर. इंटरनेट इज हियर टू स्टे, सोशल मीडिया इज हियर टू स्टे. हम कहते हैं, मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान एक इतना महान देश है कि कोने कोने में नग छुपा हुआ है. हम लोग ये टेलीविजन भी कहते थे कि यार नग छुपा हुआ है. नाउ एंड अनुपमा सेड अ वेरी नाइस थिंग. व्हाइल वी वर सोर्सिंग टैलेंट, वी यूज्ड टू एक्चुअली take help from technology, find out कोई लड़का लड़की अपलोड कर रहा है अपना वीडियो. Now there was this singer, I don't know who the singer is. I think वो कौन सा गाना था जो वूफर कौन सा गाना था? इमरान. I believe he said I had no chance of becoming a singer. कोई ऑडियो कंपनी मेरे साथ नहीं थी, and he wrote this song and made a video, uploaded it, and this is history. I mean it became a cult. Yes. So you never know. अब ये कहते हैं कि आप नाचो. It's not about singing only. We were talking all the time about singing. You can dance, you can entertain, you can do anything. But you should have that. आप जो अभी पूछ रहे थे, hidden talent. What is hidden talent? कोई ऐसी चीज जो आपके अंदर है, जो आपको लगता है मुझे दिखानी चाहिए, दुनिया के सामने आनी चाहिए. I think internet इतनी महान चीज है. At the click of a button, you can reach the world. And this is what Fremantle is doing. For example, if you can dance well, if you can sing well, if you can do some tricks, you can do anything, and you get those maximum views, and you're a star. It's not about just singing all the time. Yes, we have discovered great singers. We got some great talent. उन्होंने बहुत नाम कमाया है. लेकिन according to me, this India's digital superstar is here to stay for a long, long time. Only I'll tell Anupama, कि yes, television can also not be removed at all. Television will always be there. Television के बिना जिंदगी नहीं है. घर घर के अंदर बैठ के आपको देख रहा. But of me, what you people are doing, taking the world, the country forward through technology and getting talent on a, like he said, a portal. It's fantastic. And according to me, नई चीज पर थोड़ा होता है कि यार होगा नहीं होगा, बातें चलती हैं, चलेगा नहीं चलेगा, यार वो जजेस की जरूरत है कि नहीं है, अभी चाहिए. लेकिन नहीं, अभी किसी ने अच्छा बोला, कंफर्ट, आपका कंफर्ट जोन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आप डर जाते हैं जजेस के सामने आते हैं कि यार अन्नू मलिक क्या बोल देगा हमें, सलीम क्या बोलेगा, विशाल क्या बोलेगा. नहीं, आप बोला नहीं तो अच्छा है. तो मगर ये है कि डर रहता है. According to me, singers do get scared when they come in front of a judge, and suddenly what happens is they clam up. When they clam up, they're so scared कि यार वो अच्छा गाने वाला भी डर जाता है. ये हो सकता है. But here, as Shashi was just pointing out, कि आपको जो गाना है गाइए, आप जो मस्ती करना करिए, आप कोई देख रहा नहीं है, and then upload it. And this is where India's digital superstar is here to stay. I would congratulate Fremantle, I would congratulate Anupama and Satish and everyone connected with it. God bless you. Thank you so much. अनु जी, एक सतरंगी अतरंगी टैलेंट जो आपको याद आ रहा हो. देखिए अभी you know what, there have been times when we have searched कि आपको कौन सा एक टैलेंट नजर आता है. बट सबसे बड़ी चीज ये होती है कि when you search for talent, somehow I remember seeing, I don't know, I remember this girl who was doing hula hoops.
Okay. And we were just finding out here kya talent kaun se from Ukraine. And the way she was doing it was something which only, you know, you got to see it. I mean, when you look at Chris Angel, I'm a big fan of Chris Angel. I don't know how much you've seen this magician. I've seen. And how much you appreciate him. Yeah. But to me, when I saw Chris Angel, I said, I can't believe this guy. कोई ऐसा आदमी भी है. And that अतरगी सतरगी चीजें जो करता है, like making an elephant disappear. Yeah. Right in front of you. Yeah. You know, पर्दा ऐसे रखा हुआ है, and suddenly the parda is removed, and 2 seconds back the elephant was there, and suddenly the elephant is not there. How did he do it? I mean, this kind of atragi satragi talent I've never seen. Chris Angel is God to me as far as magic is concerned. But this is going to be found out, according to me, on this portal. You're going to find that kind of talent through India's digital superstar. I believe that. Thank you so much, Anuji. Anubhav sir. 3 म्यूजिक वाले सिर्फ म्यूजिक के टैलेंट की बात करते हैं, किसी बात ही नहीं करते कोई और. बट यू नो, आई डिसएग्री विद ऑल ऑफ यू दैट इट्स गोइंग टू बी ईजियर ऑन यूट्यूब. It's not. You know, the big deal about what you guys went to was that it was supported by very, very strong infrastructure and muscle. So when you went to sing, there was 4 celebrity judges sitting in front of you. It was being promoted on outdoor hoardings and radio and TV. So the biggest trouble with talent reaching people is discovery. How do you get discovered? When you're on TV in front of celebrity judges, it's way easier to at least discover you, and then I have the choice of not liking you. But on this platform, the biggest challenge for the talent is going to be to get discovered. Because when a platform like this goes out there and then the talent starts uploading stuff, a whole lot of stuff will be there. You will have a choice of, say, 10,000 videos. You can't watch 10,000 videos. Then you will sample them with how many views who has got. Music will take precedence, and there could be some extraordinary talent about a man talking about anything. Talking is never interesting. So you would tend to go to music. Discovery is going to be hugely, hugely difficult. And no matter what you do, I mean, even as Fremantle, it will be tough to put in as much muscle into a platform which is still being discovered in the country. We like to say we've got huge internet connectivity, but we don't. It'll take 3, 4, 5 years. So that is going to be a huge challenge for the talent to get discovered. But the good news is that, you know, there is music, which we have a huge appetite for the country. Then there is comic acts that are being consumed. But there is so much more. Like I saw a guy, anticipating your question, who sings bad. He's so bad that it's very interesting to hear him. You can't hear him for more than 5 minutes, but you do want to hear him. It's a guy from Dubai. Vishal, have you heard him? The guy from Dubai, he spends ridiculous amounts of money on his videos, and he sings. I don't remember the name. Something like, yeah. He is so bad. He's so bad that you want to watch him. I mean, how bad can get. Is what. And then there'll be other talents. Like, I mean, I find Superwoman, Lily Singh, I think she's immensely talented, not only in terms of the way she acts and performs, but also in terms of she finds different meanings in day-to-day life. That's talent. So a whole lot of such talent will get platform here, and I wish Fremantle and One Digital and Zenga TV and Gioni and Red, I wish them all the best, that they can put all Amazon, I'm sorry, the lead sponsor. I wish them all the best in terms of getting all the resources and muscle and infrastructure together to make sure that this talent is discovered. Thank you. Thank you so much, Anubhav ji. टीवी एक पहले फिल्में थी, उसके बाद टीवी आया. आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को और आसान बनाया गया कि आपको थिएटर में जाके देखने की ज़रूरत नहीं, आप अपने घर पे ही देख सकते हैं. अब उसी टीवी को आपकी जेब में ला के रख दिया गया है या आपकी ऑफिस की डेस्क पे ला के रख दिया गया है. तो है अभी भी वो टीवी ही, लेकिन अब उस पर आप जो चीज़ें कर सकते हैं वो थोड़ी ज़्यादा आसान हो गई हैं. अभी जो ट्रेडिशनल टीवी है, जैसे दुनिया भर के चैनल्स हैं, उन चैनल्स पे प्रोग्राम प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी रिसोर्सेज की, पैसों की आवश्यकता होती है. और ज़रूरी होता है कि वो आधे घंटे के हों या 1 घंटे के हों, उसका एक फॉर्मेट होता है. इंटरनेट वाला जो टीवी है, जो आपकी जेब में है, जो आपके फ़ोन पर है, जो आपके कंप्यूटर पर है,
उस टीवी में आपके फॉर्मेट पे कोई बंदिश नहीं है। 5 मिनट का भी शो बना सकते हैं, 20 मिनट का भी बना सकते हैं, 2 घंटे का भी बना सकते हैं, और उसमें नॉर्मली उतने पैसों की ज़रूरत नहीं होती जितने पैसों की ज़रूरत ट्रेडिशनल टीवी के शोज़ बनाने के लिए होती है। तो इस लिहाज से कोई ऐसा नहीं है कि टीवी से इसका कोई कंपटीशन है, ये टीवी का ही एक्सटेंशन है। और चूँकि फ़ोन पर इतना इंटरनेट अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ तक पहुँचना और भी आसान होगा। इसलिए मुझे लगता है कि भविष्य में ये बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म होगा। वाकई में टैलेंट ढूंढ रहे हैं या लोग इससे पैसे कमा रहे हैं, ये तो बड़ा मतलब ये सवाल ही नाजायज़ है ना उस उन लोगों के ऊपर जो ये मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए, जब से टैलेंट हंट शोज़ टीवी पर शुरू हुए, उसमें से कितना टैलेंट निकला, कितने बहुत सारे सिंगर्स, डांसर्स जो कि मेन स्ट्रीम में आए। तो जाहिर है किसी ने उसको बिजनेस भी बनाया जी, लेकिन आपके सामने सबूत है कि इतना सारा टैलेंट भी निकला उन शोज़ से। 2015 में, हाँ मतलब मैं तो नए टैलेंट के साथ काम करना हमेशा पसंद करता हूँ। मेरी पहली पिक्चर ही नए लोगों के साथ थी। हालांकि बड़ा मुश्किल होता है नए लोगों के साथ फिल्म बनाना, लेकिन मैं मुसलसल ये कोशिश करता रहूँगा कि और भी फिल्में नए लोगों के साथ बनाऊँ। म्यूज़िक में बहुत सारा काम कर रहा हूँ इंटरनेट पे, जो कि नॉन फिल्म म्यूज़िक है, बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। उसमें बहुत सारे नए टैलेंट के साथ काम कर रहा हूँ, तो वो देखने मिलेगा आप लोगों को। मेरा जो प्रेम है नए लोगों के साथ, वो आपको देखने मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो कितना चैलेंजिंग का है। बहुत सारे बच्चे लोग सब अभी आजकल यूट्यूब ही देख रहे हैं, टीवी कौन देख रहा है? बच्चे यंग जनरेशन। मैं यंग जनरेशन, जब मैं यंग कहता हूँ तो 10 साल की उम्र से लेके 20 साल के जो वो ऑडियंस है, 10 से 25 एक्चुअली, या 30 तक, वो बहुत लोग जो है वो यूट्यूब पे आजकल, क्योंकि अगर समझो मान लो अपने एक टीवी शो मिस भी कर लिया तो वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो चैलेंजिंग बिल्कुल नहीं है। मेरा मानना ये है कि डिजिटल मीडियम बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम है और यूट्यूब का ज़माना है। लोग काफ़ी कुछ यूट्यूब को व्यू करते हैं, काफ़ी कोई चीज़ें व्यू करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंडियाज़ डिजिटल सुपरस्टार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा पोर्टल है जहाँ वो सभी को पूरी दुनिया में अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में कुछ भी टैलेंट है, चाहे आप एक्टर हो, डांसर हो, कॉमेडियन हो, सिंगर हो या कुछ भी हो, आपको वो एक फ़ोन के ज़रिए या आपके एक डिजिटल क्लिप के ज़रिए आप इंडियाज़ डिजिटल सुपरस्टार पे अपलोड कर सकते हैं और पूरी दुनिया देख सकती है। टेलीविज़न की कोई झंझट नहीं है, ना कोई आपको लाइन लगाना है, ना कोई आपको जजेस को इम्प्रेस करना है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जिनमें टैलेंट है, उनको रियलिटी शो में आना नहीं है, उनको सिंगिंग कंपटीशन में या डांसिंग कंपटीशन में आना नहीं है, क्योंकि उनको वो झेलना नहीं है कि वो वो रिफ्यूज़ हो जाए या उनको नापास हो जाए अगर वो ऑडिशन में से, तो उनको वो डील नहीं कर रहा है। उनको अपना सिर्फ टैलेंट बताना है पूरी दुनिया को। मैं प्रमोट तो नहीं कर रहा हूँ, मैं बतौर गेस्ट आया हूँ यहाँ पे, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो कॉन्सेप्ट है इंडियाज़ डिजिटल सुपरस्टार का, जहाँ पे लोग अपने घरों में क्लिप्स बना के अपने टैलेंट का प्रदर्शन कर सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं बगैर टेलीविज़न के माध्यम के। टेलीविज़न पे आना बहुत कठिन होता है, बहुत मेहनत लगती है उसके लिए, बहुत बड़ी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, बहुत ऑडिशन करना पड़ता है, बहुत लेवल्स को पार करके फिर लोग स्टेज पे आते हैं, टीवी पे आते हैं। तो इसमें क्या है कि डायरेक्टली आप अगर घर पे गाते हो तो डायरेक्टली अपना क्लिप बना के अपलोड कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप जादूगर हैं तो वो भी कर सकते हैं, आप कीबोर्ड प्लेयर हैं वो भी कर सकते हैं, आप डांसर हो, कुछ भी हो, कॉमेडियन हो, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो ये बहुत अच्छी एक प्लेटफॉर्म है। बहुत मिसलीडिंग बात है, आप अगर कोई भी डेटा ले लें, आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करें तो आप जानेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल वीमियो है या डेली मोशन है या यूट्यूब है, जो एक मतलब इंटरनेट की जो चैनल्स हैं जैसे यूट्यूब या डेली मोशन या वीमियो, एक दिन में 85 बार जितना टेलीविज़न लोग देखते हैं, 85 बार ज़्यादा उस पर इंटरनेट पे देखते हैं। तो टेलीविज़न का जो मेन स्ट्रीम मीडिया होना ये बहुत जल्द ही बदल रहा है। हालांकि टेलीविज़न हमेशा रहेगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंटरनेट भी बड़े ज़ोरों में मतलब टक्कर दे रहा है। और जैसे कनेक्टिविटी बढ़ते जाएगी, जैसे लोगों का एक्सेस बढ़ते जाएगा, जैसे स्मार्टफोन्स की वजह से बढ़ा है, तो इंटरनेट भी बढ़ते जाएगी।
कई फिल्मों में आपने कैमियो किया, छोटा छोटा एक्टिंग का, तो फुल फ्लेज कोई ऐसा रोल? नहीं सर, आपने अगर वो कैमियोज देखे हैं तो आप जानते हो कि वो टैलेंट नहीं है, वो अत्याचार है जो फारा खान की वजह से ऑडियंसेस पे होता है। और मैं तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा उन बातों के लिए, क्योंकि एक्टिंग तो मुझे बिल्कुल नहीं आती। ये बिल्कुल मेरा हिडन टैलेंट नहीं है, सिर्फ हिडन है, कोई टैलेंट नहीं है उसमें। तो मुझे लगता है बहुत इम्पैक्ट होगा इसे अगर ठीक तरीके से प्रमोट किया जाए। और फ्रीमैंटल जो हैं वो बहुत जो प्रोडक्शन हाउस है फ्रीमैंटल, वो बड़े दिल से ये काम करते हैं नए टैलेंट को खोज निकालने का। तो मेरे हिसाब से जो जवान लोग देखेंगे, जो नए लोग देखेंगे और चाहेंगे कि उनकी जो कला है वो देश तक ले जाएं, दुनिया तक ले जाएं, वो ज़रूर मतलब अपने क्लिप्स तो डेफिनेटली अपलोड करेंगे। फिर आपके ऊपर है, आप कितना देखते हो, कितने क्लिक्स देते हो, कितने लाइक्स देते हो, कितने व्यूज़ देते हो, फिर उससे डिसाइड होगा कि इंडिया डिजिटल सुपरस्टार कौन है। बचपन की यादें तो यही है, सबकी यादें यही है कि स्कूल जाते थे, स्कूल में फ्लैग होइस्टिंग होता था, जनगण मन गाते थे, बड़ा गर्व महसूस होता था। अब भी बहुत गर्व महसूस होता है। 26 जनवरी हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस दिन हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक रिपब्लिक बना, ये बहुत एक प्राइड की बात है। जिस तरह से ह्यूमन राइट्स और इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, ये जो सारी बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, वो आई थिंक दुनिया में सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है वो इंडिया है। और डेमोक्रेसी वो कहलाती है इन्हीं बातों की वजह से। सबको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई और जय हिंद। आई थिंक इंडियाज़ डिजिटल सुपरस्टार आसमान की बुलंदियों को छूने वाला है, क्योंकि आई थिंक ये पहला डिजिटल एज एन टैलेंट हंट है, पहला डिजिटल टैलेंट हंट है जहाँ पर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस आप अपने समय पे अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से आप वीडियोस अपलोड कर सकते हैं और भेज सकते हैं ऑन दिस वेबसाइट। और जितने ज़्यादा लाइक्स आपको मिलते हैं, जितने ज़्यादा हिट्स आपको मिलते हैं, तो आई थिंक आपका बहुत बड़ा फेयर चांस है टू बिकम इंडियाज़ डिजिटल सुपरस्टार, फर्स्ट सुपरस्टार। और लेकिन हाँ, एक छोटी सी मुश्किल ही वहाँ पे होगी कि सिंगर्स के साथ और डांसर्स के साथ, एक्टर्स के साथ ही कंपटीशन नहीं होगी। लेकिन जितने भी टैलेंट्स हैं दुनिया के, चाहे वो डांसिंग हो या सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, वॉट एवर, आई थिंक सभी टैलेंट्स के बीच का ये एक कंपटीशन है। और उसमें से जीत कर बाहर निकलना, दैट्स गोना बी अ वेरी बिग थिंग। और ऑल द बेस्ट। मैं सिर्फ सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स रहने वाले हैं उन सभी को मैं ऑल द बेस्ट विश करना चाहती हूँ एंड मे द बेस्ट। इंडियन आइडल डेफिनेटली डिफरेंट था। इट वाज अ रियलिटी शो। ये रियलिटी शो नहीं होकर एक एक्चुअल रियल कंपटीशन होने वाली है, जहाँ पर आप किसी भी हालत में कैसे भी वीडियोस अपलोड कर दीजिए। और रियलिटी आपको तब फेस करनी है जब एक सिंगर की एक डांसर के साथ, एक सिंगर की एक एथलेटिक के साथ कंपटीशन होने वाली है, एक डांसर की एक एक्टर के साथ कंपटीशन होने वाली है। सो इट्स गोना बी वेरी ह्यूज। और रियलिटी शो के जो एज एन मैं 4 महीने इंडियन आइडल के दौरान मैं मुंबई में 4 महीने रही थी। और जिस तरह का कॉन्सेप्ट है रियलिटी शो का, दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट दैट इज़ इंडियाज़ डिजिटल सुपरस्टार। और ना तो कोई रूल्स है, ना तो कोई रेगुलेशंस है, ना तो कोई वोटिंग्स होने वाली है। इट्स जस्ट आपको अपना वीडियो अपलोड करना है एंड पूरी दुनिया को आपका टैलेंट दिखाना है। और जिसको सबसे ज़्यादा लाइक्स मिलती है या हिट्स मिलते हैं, वही इंडिया का पहला डिजिटल सुपरस्टार बन जाएगा। सो आई थिंक डेफिनेटली टोटली डिफरेंट है। और शायद मैं रियलिटी शो में ना होती और थोड़ी सी लेट पैदा होती तो मैं इंडियाज़ डिजिटल सुपरस्टार में पार्टिसिपेट करती। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। मार्च और अप्रैल में मैं रिवील नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन मार्च और अप्रैल में डेफिनेटली आपको मार्च और अप्रैल तक आपको डेफिनेटली सुनने मिलने वाला है मेरा गाना। इट्स अ ड्यूएट विद मीट ब्रदर्स। सो आप ज़रूर सुनिए। जी बिल्कुल। घनन घनन हो मेघ जवर से लीलाना श्रृंगारन तरसे चुडलन त्रिपतलो कंदोरो शोभे राणी रूढ़ रंग छे गोरो प्रेमी पंखीड़ा छे राम लीला वंटोड़े चढ़िया छे राम लीला लगे सारे दुश्मन दिखे सब में जो
तेरी बालकनी में बैठा एक मोर, मोरों की मिस्टेक रामलीला बदनाम। हे मारा राम, हे मारा राम, राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लाभ में दुनिया का क्या काम। थैंक यू।